बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में एक्ट 3 स्टार्ट करेंगे और इसके पहले 2 सीन्स डिस्कस किए जाएंगे समरी और उनके क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। इन दिस सीन वी सी क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड डिस्कस हैमलेट्स बिहेवियर विद रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टन who say they have been unable to learn the cause of his melancholy. They were deputed to bring out the cause, to extract the cause of Hamlet's apparent insane behavior, whereas they admit their inability of finding any cause of his melancholy. They tell the king and queen about Hamlet's enthusiasm for the players. Encouraged, Gertrude and Claudius agree that they will see the play that evening. Rosencrantz and Guildenstern leave, and Claudius orders Gertrude to leave as well, saying that he and Polonius intend to spy on Hamlet's confrontation with Ophelia. We learned previously in the previous act that Polonius is of the view that he will arrange a meeting with between Hamlet and Ophelia, and thereupon he and the king will spy on that meeting and will try to gauge the situation, try to gauge out why Hamlet is behaving in this way. They will try out to reason out the reason of Hamlet's behavior, saying Gertrude exists and Polonius directs Ophelia to walk around the lobby. Polonius hears Hamlet coming and he and the king hide. Hamlet enters, speaking thoughtfully and agonizingly to himself about the question of whether to commit suicide to end the pain of experience. To be or not to be, that is the question. It's a very famous line, not only that it comes from English literature. It is a very famous line across the world. You have seen many of the people uttering this very line, to be or not to be. It is a very beautiful depiction of a mind that is suffering through some sort of conflict. To be or not to be, may be or may not be, may be. This is a very beautiful expression. That is a question. जब इंसान किसी एक डेडलॉक में फंस जाता है दो इंतहाओं में, तो उस वक्त की क्या खूबसूरत डिपिक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ शेक्सपियर. He says that the miseries of life are such that no one would willingly bear them, except that they are afraid of something after death. Because we do not know what to expect in the afterlife, we would rather bear those ills we have, Hamlet says, than fly to others that we know not of. In mid-thought, Hamlet sees Ophelia approaching. Having received her orders from Polonius, he tells him that she wishes to return the tokens of love he has given her. यहाँ पे ना बड़ी खूबसूरत लाइन है, मुझे याद आ गई. वैसे ना ये वैसे वो पहली लाइन होगी जो मुझे पूरी याद आई है पुरानी की. तो वो जब उसको वापस करती ना सारे इसके टोकन ऑफ लव जो गिफ्ट्स वगैरह थे, तो इसने बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि रिच गिफ्ट्स वैक्स पुअर व्हेन द गिवर्स प्रूव अनकाइंड. बड़ी खूबसूरत लाइन है. जब देने वाले ही अनकाइंड हो जाएं तो वो जो अच्छे तोहफे होते हैं ना वो भी तकलीफ़ देने लगते हैं, इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं. रिच गिफ्ट्स वैक्स पुअर व्हेन गिवर्स प्रूव अनकाइंड. वो उसको वो कहती मैं तुम्हारे सामान या तोहफे वापस करना चाहती हूँ. ऐसा ही एक आपको सीन यहाँ से स्ट्रक्चर इसका आपको मिलेगा. देवदास में जब वो उसके पास आती है पार्वती दोबारा, तो उसको कहता है ये मेरी बचपन की यादें हैं, वो जो चीज़ें दिखा रहा होता है वापस करना चाहता है. एंगरली हैमलेट डिनाइज हैविंग गिवन हर एनीथिंग. कहता मैं तो तुमने कोई तोहफा दिता ही नहीं. जानबूझ के गुस्से में, यानी इनसेन बना रहा है ना. He laments the dishonesty of beauty and claims both to have loved Ophelia once and never to have loved her at all. और अपने हर अहदो पैमान से वो मुकर जाता है कि मुझे तो याद ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था तुम्हें. और ये कि जो चूँकि हमने पढ़ा कि he is thoroughly disappointed from the tender sex, तो इसलिए उसको हर बात वहाँ पे झूठ मकर फरेब ही लग रही है उसकी तरफ से. Bitterly
Commenting on the wretchedness of humankind, he urges Ophelia to enter a nunnery rather than become a breeder of sinners. कहता है इस दुनिया से निकल जाओ, छोड़ दो इस दुनिया को, ब्रीडर ऑफ सिनर्स ना बनो, यानी क्या आती है, गुनाह की अमाजगाह में इसकी परवरिश करने वाली ना बनो. गो गेट दी टू द ननरी, ये उसकी लाइन है वहाँ पे, वो बोलते गेट दी टू द ननरी, क्या ननरी में चली जाओ जहाँ पे नन्स रहती हैं, वो वाली ज़िंदगी शुरू कर दो. He criticizes women for making men behave like monsters, for contributing to the world's dishonesty by painting their faces to appear more beautiful than they are. ये वही हमारा कॉमन यहाँ का पॉपुलिस्ट बिलीफ भी आ जाता है कि औरतें जो हैं वो वजह हैं मर्दों की, जो लस्ट है उसमें जो मसाइल हैं उसकी. तो ये भी उसको बताता है. यहाँ पर भी एक और लाइन है वो जो बोलता है गॉड गेव देम वन फेस दे मेड मैनी. तो उसके मेकअप वगैरह के ऊपर बात कर रहा है कि मेक ओवर्स से वो उन्होंने अपने ज़्यादा चेहरे बना लिए, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा देती हैं औरतें. तो ये उसके ऊपर है कि तुमने डिसऑनेस्टी, ब्यूटी की डिसऑनेस्टी के ऊपर और उसकी कनिंगनेस के ऊपर बात कर रहा है. वर्किंग हिमसेल्फ इनटू अ रेज, हैमलेट डिनाउंसेस ओफिलिया, उसने ओफिलिया को छोड़ दिया. विमेन and humankind in general, saying that he wishes to end all marriages. यानी ये तो बड़ी ही उसने एक जो कहते हैं ना सड़ के या साड़ निकाला है कि अल्लाह करे सब की जो शादियां ख़राब हो जाएं, टूट जाएं. यानी ये तो किसी कुंवारे की बददुआ लगती है जैसे उस तरह की. तो ये एज ही स्टॉर्म्स आउट, ओफिलिया मॉन्स द नोबल माइंड. जिस रोज़ बात कर व्हाट आवर नोबल माइंड इज़ हेयर ओवर थ्रोन. तो वो कैसा बेचारे के साथ क्या हो गया, उसको तरस आया कि कितना शानदार आदमी था जिसको पता नहीं क्या गम या क्या तकलीफ़ खा गई. व्हाट आवर नोबल, कई किसी इंसान को आपने देखा हो बहुत अच्छी बातें करते हुए, बहुत कुछ सुनते हुए, अचानक वो पागल हो जाए, इसका ये हाल हो जाए, तो उसके ऊपर आपको एक सिंपथी फील होती है. ग्लास ऑफ फैशन इसको कहती है. अभी उसको उसके साथ दुख हो रहा है ना. व्हाट आवर नोबल मैन इज़ हेयर ओवर थ्रोन, दैट नो लैप्स्ड इनटू एपरेंट मैडनेस. उसकी इस मैडनेस पर वो बड़ा ही मॉर्न करती है उसको. द किंग एंड पोलोनियस emerge फ्राम बिहाइंड द टेपेस्ट्री. वो जो टेपेस्ट्री का पता ना आपको, ये आपने देखा वो रेस्टोरेंट्स में जाएं तो वहाँ पर भी वो जो लकड़ी के भी एक लगाए होते हैं, वो टेपेस्ट्रीज़ क्रिएट की गई होती है ना, थोड़ा पर्दा पार्टीशन के लिए वैसा. तो ये वहाँ से ये भी आ जाते हैं, या जो भी टेपेस्ट्री कोई भी सजावट वगैरह. Claudius says that Hamlet's strange behavior has clearly not been caused by love for Ophelia, and that his speech does not seem like the speech of insanity. क्लॉडियस यहाँ पे बिल्कुल सही है, उसको नहीं लगता कि ये इसका इस वजह से कि ही इज़ डिजेक्टेड, अपना क्या है इसकी मोहब्बत की वजह से है, और वो कहता है कि वो पागल वाली उसकी बातें नहीं हैं. He says that he fears that melancholy sits on something dangerous in Hamlet, so like a bird sits on her egg, and that he fears what will happen when it hatches. अब पता नहीं कहता कौन सी ऐसी मनहूस बात है जिसके ऊपर ये बैठ गया है, एग के ऊपर जैसे बैठ जाता है. अब जब ये एग जो है जब वो हैच होगा, इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा, ये ख़तरनाक कोई चीज़ हो सकती है ना, कुछ समथिंग ओमनियस. He declares that he will send Hamlet to England in the hope that a change of scenery might help him get over his troubles. जगह बदलने से भी बंदे के हालात थोड़े से ज़हन थोड़ा तब्दील हो जाता है, वो वैसा कुछ. उदासी भी एक जगह घेरती है, तो इसलिए जब उदास हो तो फिर इंसान को अपनी जगह बदल लेनी चाहिए, फ़र्क पड़ जाता है तबीयत में. Polonius agrees that this is a good idea, but he still believes that Hamlet's agitation comes from loving Ophelia. लेकिन इस बात पर पक्का है कि उसका ये मसला जो है वो कौन सा है, वो ओफिलिया वाला ही है. He asks Claudius to send Hamlet to Gertrude's chamber after the play, जो प्ले विदन प्ले करने वाले, उसके बाद कहता मैं उसके जाऊँगा गर्टरूड के चैम्बर में, यानी उसके आरामगाह में, ख्वाबगाह में. वेयर पोलोनियस कैन हाइड अगेन एंड वॉच अनसीन, वहाँ पे छुप के अनसीन देखने की कोशिश करेगा. ही होप्स टू लर्न वेदर हैमलेट इज़ रियली मैड इन लव, मैड विद लव, और देर इज़ सम अदर रीज़न. क्लॉडियस अग्रीज सेइंग दैट
madness in great ones must be carefully watched. ग्रेट वंस जो इस तरह के सियाने बड़े जो लोग होते हैं उनको बड़ा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा आपको, तो जाके हो सकता है कि हमें उसकी वजह मिले। सर ये उसकी मर्जी से जाएगा उधर देखने? नहीं, उसने उस हैमलेट की मीटिंग है ना अपनी माँ के साथ, अच्छा वो ठीक है। कहता उस दौरान मैं वहाँ पे छुप के वहाँ पर देखूंगा कि वहाँ पर भैया इसका क्या। क्लॉडिस को पता है कि ये जाएगा? हाँ, क्लॉडिस की इजाज़त ले तो रहा है। एनालिसिस अगर इसका देखें हम तो ये बड़ा ही मशहूर अभी मैं बात कर रहा था कि जो हैमलेट के शेक्सपियर के जो प्लेस होते हैं उसमें जो उसका जो प्लॉट के क्लाइमैक्स है वो हमेशा थर्ड एक्ट में होगा, और जो सबसे अहम सीन होता जैसे ओथेलो में एक्ट 3 सीन 3 लॉन्गेस्ट सीन भी है और उसमें सारा कुछ है, लेकिन कम से कम एक्ट 3 तो लाजमी होता है जिसमें एप्टिमाइज हो जाती है सारी जो टेंशन होती है वो अपने लेवल पे पहुंच जाती है। To be or not to be, the most famous line in English literature, what does it mean? अब इसके कई connotations आ जाती हैं। Why are these words and what follows special? क्यों इसमें इतनी अहमियत, इसको हम क्यों देते हैं, इसको इतना क्यों इसको सर पे चढ़ाया हुआ है बात को? One reason is that they are stunning example of Shakespeare's ability to make his characters seem three-dimensional. 2 डायमेंशनल भी नहीं है, सिंगल डायमेंशन करेक्टर्स भी होते हैं, ये 3 डायमेंशनल हैं। द ऑडियंस सेंस दैट देयर इज़ मोर टू हैमलेट्स वर्ड देन मीट्स द ईयर, यानी कि हम लैंग्वेज भी एक हद तक आपके इमोशंस को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है, आपकी ज़ुबान ईयर तक जो पहुंचाती है। देयर इज़ अ लॉट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज. Language cannot transport the load of burden, load of feelings. This is the thing about pain. It demands to be felt. How can you tell how a headache is? How can you? It demands to be felt. So language cannot tell the whole. Therefore, this way of telling, narrating, describing the position of a character is a very special thing for Shakespeare, where he presents his characters in this way or utters or puts in their mouth some such phrases and such dialogues that create 3-dimensional kind of characters. तो pregnant words, loaded with pregnant with thought होते हैं words। कहता है कि मीट द ईयर, यानी हमें कुछ तशनगी सी रहती है, हम खुद से भी सोचते हैं फिर उसके ऊपर। देयर इज़ समथिंग बिहाइंड हिज वर्ड्स दैट इज़ नेवर स्पोकन, जो अनकही होती है वो ज़्यादा सुनना शुरू हो जाती है अगर आप उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दें। और टू पुट इट अनदर वे, द ऑडियंस विटनेसेस साइंस ऑफ समथिंग विद इन हैमलेट्स माइंड दैट इवन ही इजंट अवेयर ऑफ। कॉन्फ्लिक्ट में है ना, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि जहन में कोई और भी बात है। हो सकता है कि उस कैरेक्टर को खुद भी अभी ना पता हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या हो रहा है, लेकिन हमें समझ आना शुरू हो जाती है बीइंग एन ऑडियंस। हैमलेट इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर हु सीम्स टू पोजेस अ सबकॉन्शियस माइंड। हाउ डज शेक्सपियर मैनेज टू अकम्प्लिश दिस? कैसे फिर करेगा? सबकॉन्शियस माइंड का हमें कैसे पता चलेगा? हम उसकी लैंग्वेज के थ्रू ही चलेंगे ना। सोलिलोक्वीज जो हैं वो एक यूज़ है फिर इस तरह का, क्योंकि उस ज़माने में आप आज एक मॉडर्न तरीके की सोलिलोक्वी देखते हैं ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर, जो विजुअल फिल्म्स हैं, जो ड्रामाज हैं हमारे, कैसे स्टेज के ऊपर आपने देखी कि करेक्टर खुद बोलता है। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर सोचते ही हैं, बोलते नहीं हैं। क्या अभी बोल के भी सोचा किसी ने? सोच के ही सोचते हैं ना, अपने ज़हन के अंदर गुफ्तगू हो रही है, सबकी होती है। आज फिल्म के अंदर, ड्रामा के अंदर आप देखते हैं करेक्टर आईने के सामने खड़ा है और पीछे से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो सोचता है मतलब लाउड स्पीकिंग अलाउड है ना उसकी, सॉरी थिंकिंग अलाउड। वो सोच रहा है लेकिन हमें आवाज़ आ रही, दिखाया जा रहा है कि उसके जहन में ये चल रहा है, हम समझ जाते हैं। वहाँ पर जो soliloquy है इसका भी यही एक मकसद था, पर्पस था कि वाई डू आ कैरेक्टर स्पीक अलोन in order to vomit out his mind, to pour out his full heart before the audience. The audience may guess what is going on in that character's mind. हमें सजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें ना, उसकी सोचें क्या हैं, वैसे और कैसे सोचें किसी को बताई तो जा नहीं सकती। तो soliloquy का मकसद यही होता था, आइंदा के ऊपर क्या उसका है। soliloquy से ज़्यादा फिर इससे पहले जो होते थे ना, वो कोरस वगैरह काम करता था, ये वाला कोर्स को बाद में इन्होंने ये पकड़ लिया।
सलूकी के ज़रिए। तो कहता है इन द फर्स्ट प्लेस हैमलर डजंट टॉक डायरेक्टली अबाउट व्हाट ही इज़ रियली टॉकिंग अबाउट, सीधी तो बात करता नहीं है। व्हेन ही क्वेश्चंस वेदर इट इज़ बेटर टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, रहूं ना रहूं, करूं ना करूं, इतने मीनिंग इसके क्रिएट हो सकते, कई हो सकता है। टू बी और नॉट टू बी, ज़िंदा रहूं कि मर जाऊं, करूं ना करूं, करूं ना करूं के अंदर आ जाएगा ना फिर सारा कुछ, यानी एक्शन के ऊपर है ना, एक्शन और इन एक्शन के दरमियान फंसा हुआ है। द ऑब्वियस इम्प्लीकेशन इज़ शुड आई किल माई सेल्फ, जो अभी आप बात कर रहे थे सर कि क्या मैं अपने आप को मार लूँ, सुसाइड कर लूँ, इस तरह की फंस गया ना, हर तरफ से तंग पड़ गए। एम्बिवलेंट भी है, मतलब फंस गए, कॉन्फ्लिक्ट का बात करेंगे, एम्बिवलेंट और चीज़ हो जाएगा, इसका कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, बस क्या करूँ क्या ना करूँ, फंस गया है इस ऐसे सोसाइटी में, लोगों में और सिचुएशन में जिसके अंदर आपने आपको मजबूर पा रहा है हर कुछ के लिए। द इंटायर soliloquy strongly suggests that he is toying with suicide and perhaps trying to work up his courage to do it, अपने आप को करेज इनकरेज कर रहा है, he is mustering his courage to commit suicide, but at no point does he say that he is in pain or discuss why he wants to kill himself। अभी तक किसी जगह पर अभी एक बात भी नहीं हमारे सामने आई जहाँ पर उसने अपनी तकलीफ़ का या इस रीज़न का बताया कि क्यों, किस वजह से भी कोई तकलीफ़ तंगी बताओ ना, वो नहीं बताई हमें। वो हम खुद ही जानते हैं अपनी कि इसको अपने बाप का दुख है, इसको इसकी माँ का दुख है, हो सकता कोई और बात उसने खुद से नहीं कहा, ये हमारे अंदाजे हैं। इन फैक्ट ही नेवर सेज आई और मी इन द इंटायर स्पीच, करूँ कि ना करूँ, है ना, उसने अपने आप को नहीं रखा कि he is not trying to express himself at all, instead he poses the question as a matter of philosophical debate। एक philosophical debate है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर गौर व फिक्र सा स्पेकुलेशन सी हो रही हैं। he is not sure about himself, he is not sure about anybody, he is just putting forward a question। वो पता नहीं प्लेटो का क्या एरिस्टोटल का है, कहता है कि इट इज़ अ साइन of a great mind to entertain an idea without accepting it, एरिस्टोटल का है ना। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप किसी भी मफरूज़े के ऊपर, किसी भी आइडिया के ऊपर बात करते हैं, बात करें, एक्सेप्ट किया बगैर उसको इंटरटेन पूरा करें, पूरी सेहत के साथ उसके ऊपर बहस करें, मानना ना मानना एक अलग बात है। तो इसने भी उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जस्ट इंटरटेन कर रहा है पूरी तरह से कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों रुखों से देख रहा है उस मामले को। अगर हम कोई लिटरेरी डिबेट करते हैं तो जैसे क्लास में आप कहते हैं कि बच्चे समझते हैं ये शायद इनके, हाँ, मतलब कि आप कोई भी एक लिटरेरी फिलोसॉफिकल थॉट बता रहे हैं, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म स्पेशली, या इस तरह की कई और बातें, तो वो बात करेंगे तो बच्चे, स्टूडेंट्स या कोई भी सुनने वाला ये समझेगा शायद इसके अपने ज़ाती बिलीफ होंगे किसी भी टीचर के, वो नहीं, वो आपको बताया जा रहा है कि फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहता है, लेकिन आपने पूरी दयानतदारी से बताना है। आप मतलब लोगों को लगना चाहिए कि वाकई ये शायद ऐसे ही है। पहले आप एक थॉट के अंदर पूरी तरह उतर जाएं, जब आप उतर जाएंगे, उसको बताएंगे, तो उसके बाद फिर आपको उसके अंदर के लूप होल्स नज़र आएंगे। आपने माना ही नहीं बात को, आपको क्या पता कि गलत है कि ठीक है, पहले उसको मान के, उसको समझ के तो देखो, समझो, फिर उसके अंदर से निकालो नकाइस अगर आपको लगते हैं कि। When he claims, Hamlet, that everybody would commit suicide if they weren't uncertain about the afterlife, it sounds as if he is making an argument to convince an imaginary listener about an abstract point rather than directly addressing how the question applies to him। देखें, कहता है अगर लोगों को अपने आइंदा के बारे में, मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में अनसर्टेनिटी ना होना, तो हर बंदा ही मर जाए, उसको पता नहीं मेरे साथ कल को क्या होगा, तो फिर वो जान छुड़ा ली इधर की ज़िंदगी से। तो इसमें कहता है कि ऐसा आर्गूमेंट करता है तो कन्विंस एन इमेजिनरी लिसनर, जैसे कोई है ही नहीं, अकेला तो बात कर रहा है, तो कन्विंस किसको कर रहा है, इमेजिनरी किसी को ना, यार ऐसा हो तो ऐसे कर लेंगे, अगला बंदा हाँ हूँ करेगा ही ना उसके अंदर, तो वो ऐसा किसी को लग रहा है। तो एक तो बात हमें ये नज़र आती है। दूसरा, नो इट इज़ परफेक्टली ऑर्डिनरी फॉर कैरेक्टर्स इन प्लेस so as to say something other than what they mean to other characters, this suggests that they are consciously hiding their true motives।
ये कैरेक्टर्स आपको हर बंदा दूसरे से कोई ना कोई बात छुपाता नज़र आएगा ड्रामा के अंदर, हर बंदा किसी न किसी छुपाव में मौजूद है। बट हैमलेट डज इट व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो क्या हैमलेट अपने आप से कुछ छुपा रहा है, दूसरों से छुपा रहा है? यहाँ पे लगता है जैसे कुछ अपने आप से भी छुपा रहा है। दिस क्रिएट्स अ जनरल इम्प्रेशन दैट देर आर थिंग्स गोइंग ऑन इन हैमलेट्स माइंड दैट ही कैंट थिंक अबाउट इट डायरेक्टली। अभी वो बातें उसको सजेस्ट कहीं हो रही हैं उसके दिमाग के अंदर, बट ही इज़ नॉट अप्रोचिंग और टचिंग दोज थिंग्स डायरेक्टली। अभी उसको खुद से बाकायदा उसको पता नहीं है कि क्या है। While we are on the subject of what's going on inside Hamlet's mind, consider his encounter with Ophelia। ये बड़ा ही मशहूर सीन है, ये ननरी सीन जो है इसको कहते हैं, जहाँ पे सजेस्ट करता है उसको कि गेट दी टू द ननरी। आपने वो जो ड्रामा था, रशियन ड्रामा था चेरी ऑर्चर्ड, लोपाखन भी गलत अंग्रेजी उसमें बोलता था ना, शेक्सपियर गलत कोट किया करता था, है ना। ओलिविया उसको कह रहा था गेट दी टू पता नहीं लाइब्रेरी, उसने गलत करके बोला था। उसकी भी आदत थी वो हैमलेट कोड करने की, तो उसमें जैसे आजकल मैं भूल गया हूँ हैमलेट को तो गलत कोड करता रहता हूँ, तो वो ऐसे। तो ये अब अच्छा जी, हम हैमलेट के ये जो ओफीलिया की मीटिंग हैमलेट के साथ उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसमें। दिस कन्वर्सेशन क्लोजली वॉच्ड बाय क्लोडियस एंड पोलोनियस इज़ इन फैक्ट अ टेस्ट। ये तो उन्होंने खुद जानबूझ के उस पर छोड़ा था ना उसको, जाओ चेक करो इसको। It is supposed to establish whether Hamlet's madness stems from his love sickness over Ophelia. Before we, the audience, see this encounter, we already think we know more than Claudius does. हमें तो उससे ज़्यादा पता ना, ये कि इसे क्या कहते हैं, कौन सी आयरनी होती है जो ड्रामा के अंदर होती है, कि उन आयरनी ऑफ एक्शन पता नहीं क्या है, मेरे जेहन से निकल, सिचुएशन में जिसमें ऑडियंस को पता होता है उसको कैरेक्टर को नहीं पता होता। ड्रामेटिक आयरनी इसको कहते हैं, कि जिसमें हमें पता है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑडियंस क्लॉडियस से ज़्यादा जानती है। क्लॉडियस अभी चक्कर, वो तो सिचुएशन के अंदर है, हम तो आउटसाइड सिचुएशन है, तो हमें पता है इस कहानी का वो क्यों है, वो उसको क्या समझ। वी नो दैट हैमलेट इज़ ओनली एक्टिंग क्रेजी he and that he is going and he is doing it to hide the fact that he is plotting against or at least investigating his uncle. Therefore वो उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दोनों इन्वेस्टिगेशन थानेदार इकट्ठे हो गए हैं। Therefore it can't be true that he is acting mad because of his love for Ophelia, but witnessing Hamlet's encounter with her throws everything we think we know into question. Does Hamlet mean what he says to Ophelia? क्या वो वाक़यातन वही मतलब है जो उसने ओफीलिया से कहा है, या कि वो उसको तो नहीं पता पोलोनियस और क्लॉडियस मुझे देख रहे हैं। Why he is behaving with Ophelia in this way? Is he serious in his this attitude of him? क्या वो ऐसा कुछ है या कुछ वैसे उसने जस्ट उसको भी बावर करवाना चाहा कि मैं हो चुका हूँ ताकि दुनिया, या उसको लगता है कि मेरा जो पर्पज़ है वो एक ग्रेटर पर्पज़ हो चुका है, इससे किसी पे भी एतबार नहीं करता। एक तो ये वो अकेले में भी वो ऐसे ही प्रिटेंड करता है जैसे हो गया ना, एक तो ये बात हो गई कि किसी पे एतबार करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा उसने प्रिटेंड कर लिया। दूसरा उसने ये भी हो सकता है कि उसको वाक़यातन ओफीलिया से बहुत मोहब्बत है, तो उसने कहा कि इस काम के अंदर ओफीलिया को नुकसान ना पहुँचे, उसको साइड पे कर रहा है। या फिर वो समझ रहा कि जो मेरे बाप का रिवेंज है दैट इज़ अ हायर पर्पज़, लव फॉर माई, मोहब्बत भी अपनी ज़ात की है ना किसी से, वो एक लोअर पर्पज़ है, तो मैं हायर की तरफ उसको ज़्यादा स्टिक करूं, उस मामले को पहले निपटाना है, पहले वो करना है, बाद में देखी जाएगी। इसलिए ओफीलिया को भी उसने अपने आप से दूर कर लिया, मैक्सिमम अपने आप को अकेला कर लिया, ताकि मैं, यह भी होता है ना कई दफ़ा अपने बंदा ब्लैकमेल हो जाता है अपनी बीवी बच्चों फैमिली की वजह से, उसने अपने को आंदा मुस्तकबिल की हिंड्रेंसेस वीकनेस ना कोई आए, मुझे किसी मौके पे जाके कोई ऐसी जगह नहीं क्रिएट हो कि मैं किसी की वजह से काम छोड़ना पड़े। क्या ऐसा है, क्या वाक़यातन सीरियस है उसमें, जिसमें उसने कहा था मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, टू मी माई फेयर फ्रेंड यू कैन नेवर बी ऑड, ये भी वहीं की लाइन ही है। माई फेयर लफ्ज़ का आपको पता है खूबसूरत उस वक्त का मीनिंग है, आज तो वाइट है तब फेयर था। टू मी माई फेयर फ्रेंड यू कैन नेवर बी ऑड उसने कहा था। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज इनके दरमियान है, तो रिच गिफ्ट्स वैक्स पुअर व्हेन गिवर्स प्रूव अनकाइंड, वो वाली बातें हैं। ही सेज दैट ही डिड लव हर वंस बट दैट ही डजंट लव हर नाउ, अब नहीं पहले था। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विद कंक्लूडिंग दैट हैमलेट सेज
द ऑपोजिट ऑफ वट ही मीन्स इन ऑर्डर टू अपीयर क्रेजी। जानबूझ के ऐसी बातें करता है उल्टी सी। फॉर वन थिंग ही रियली डज लव हर, दिस इज़ अननेसेसरीली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इट्स अननेसेसरीली necessary because it doesn't accomplish very much, that is it doesn't make Claudius suspect him less। इतना ड्रामा भी कर लिया उसने, अपनी बिलवेड तक को छोड़ दिया, क्लॉडियस ने शक ही नहीं पाया पागल। इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी अगर नहीं पढ़ रहा तो फिर अननेसेसरी फील होता है ना मैं यहाँ पे, ये इतना करने का फ़ायदा क्या हुआ उसको? यानी सर उसने मैड बनने में भी कोई कोताही नहीं की, छोड़ा नहीं कोई कसर उसको। उन्हें कहता है ये वो भी पहुंच गया ना, वो शरीउड इस तरीके से ना। साजिशी लोग जो होते हैं ना वो साजिशियों के बू सूंघ लेते हैं कि कौन सी, यानी एक बंदे को पागलपन या इस तरह की भोला बनने की या पागल बनने की, एक्टिंग करने की आदत है या शरीफ बनने की आदत है, तो उसको जाली शरीफ भी दूर से पता चल जाएगा, अभी जान के लगा हुआ पता चल जाएगा ना उसको। तो वो इस चक्कर में ये पहचान गया कि ये जानबूझ के लगा हुआ, क्योंकि वो भी जानबूझ के नेक बना हुआ कि मैंने अपने भाई को नहीं कत्ल करवा लिया, ये वो सारा कुछ। His professions of former love make him appear fickle और emotionally withdrawn rather than crazy। हमें अजीब सा लगता है जैसे ये उबाशा लड़का नहीं होता, किसी के साथ उसका लव अफेयर था, उसको ख़त्म कर दिया आज अपना टाइम पूरा करके, या अपनी जो बात थी, हमें वैसा लगता है, पागल नहीं लगता यहाँ पे। Is Hamlet really crazy or just pretending? This is a very important question that will go on and on for discussions, for our future discussions as well। और पूरे ड्रामा में ये बात चलती है और अब तक चलती है कि whether he was really mad or was feigning madness, क्या था। He announced ahead of time that he was going to act crazy, so it is hard to conclude that he coincidentally really went mad right after saying so। देखो इसने पहले एक्ट में कहा था I'll put an antic disposition on, पागलपन तारी करूँगा, बनूँगा मैं एंटिक डिस्पोजिशन में, ताकि और उसके थ्रू मैं फिर अपना काम करूँगा जो भी है रिवेंज वगैरह। तो वो अब ये कहा, क्या इतनी बात इसकी इतनी कबूल होगी, फौरी तौर पर पागल हो गया उसके बाद? अभी वो कह रहा है कि मैं पागल बनूंगा, इसका मतलब पागल है नहीं, बनना है। अब हम ये मान लें कि वो सचमुच में पागल हो गया, जैसे कहते सारा अल्लाह अपने कहता यार अपने घर बंदा गल भी ना करे कोई, हूँ जो कहा यार तो मौत चंगी है, फरिश्ता आ गया, उन्होंने कहा यार हम अपने घर गल भी ना करिए। तो इसने कहा कि मैं पागल बनूंगा, पागलों जैसा बिहेवियर करूँगा, साथ ही पागल हो गया। कौन सी बात सही है इसकी? सचमुच में पागल हो गया या कि ये वाली बात क्या एक्ट लाइक अ मैड मैन और एक्ट क्रेजी, कौन सी बात यहाँ पे माने? एक तो बात ये है। फिर बट हिज बिहेवियर टुवर्ड ओफिलिया इज़ बोथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड फ्रॉट विद इमोशनल इंटेंसिटी। ओफिलिया के साथ बिहेवियर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, मैं भी अजीब हूँ और इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे। तो वो क्या था एक, अब तो फ़क्त कुछ दोस्त और वो दोस्त भी क्या एक मतलब वो वाला एलिमेंट, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं जैसे लग रहे। इमोशनल इंटेंसिटी के अंदर जाके इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना कि अपनी मोस्ट बिलवेड, जो इसकी बिलवेड है, मिस्ट्रेस है उसकी, मिस्ट्रेस तो एक बड़ा मायूब लफ्ज़ बन सकता है, मोस्ट बिलवेड है जो उसको भी उसने स्वीट हार्ट को भी छोड़ दिया उसने अपनी को। ये कौन सी इंटेंसिटी है? इमोशनल इंटेंसिटी जाए नंबर ही डिलीट कर बेंदे बढ़ के फिर लबड़ वो काम कर बेटा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इसका एक्ट है। इट डजेंट ऑब्वियसली फर्दर हिज प्लान्स, लेकिन वो प्लान आगे नहीं बढ़ रहे, इससे अपना नुकसान उसने बार कर बैठा है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो। मोरोवर हिज बिटरनेस अगेंस्ट ओफिलिया एंड अगेंस्ट वीमेन इन जनरल, ओफिलिया से जनरल, माँ ने हरकत की सारी औरतों पे जनरलाइज कर दिया, फ्रेल्डी दाई नेम इज़ वीमन। उसने अपनी माँ को नहीं कहा फ्रेल्डी दाई नेम इज़ मामा या जो भी गटरूड है, उसने सारी औरतों को समझ लिया कि एक जैसी है। ये जो इसे कहते हैं वो कौन सा होता है, एक तो होता है ना वो कौन सा रवैया यार होता है हम जिसको बात कर देते हैं, हाँ वो कौन सा है जिसमें नहीं एक से जनरल से हाँ डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, वो है कि सब पे अप्लाई कर दिया, एक ही बुनियाद पे सबको ही आपने कह दिया। सर वो जैसे 2% वो भी औरत वाला चला था, वो उसने हो सकता है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में किया हो, हमने समझा कि सबको किया।
नहीं समझा नहीं, उसने सब पे किया हुआ है। या उसने ऐसे उसने सब पे किया, कोई बंदा समझ ले कि यार इसने उसके लिए सर जैसे ये इसने दोनों कहा है चीजें फ्राइडे दाई नेम इज वुमन, तो उसी ने ऐसे उसने औरत कहा था, मतलब कि औरत जनरल एक वर्ड ना, पूरी औरत ज़ात को कर रहा है, सारी औरतें अगर आ लड़की गई। कह देता फिर भी था, मतलब कि उसने नहीं ये इसका कहता है ना, इस 2% की कहता है ना, हाँ जी। तो वो इस 2% की उसने इस कहा है इसके अंदर कि नहीं नहीं, सर उसने कहा 2% की औरत, 2% की औरत को सर औरत general वहाँ कर पे दिया। कहा, लेकिन स्पेसिफिक था, जनरल हो गया वो। जी सर। हमारी सोसाइटी भी तो पेट्रियार्कल है ना, सारे तो पाती सारी गल, हमारे सारों का बेंट ऑफ माइंड तो पेट्रियार्कल है ना, सर वो फेलोसेंट्रिक है। पहले ही सर मतलब स्ट्रक्चर है ना ये एक औरत जैसे स्ट्रक्चर में चला गया ना, उसको समझ लिया। जैसे होता है। तो ये बात उसने, ये बातें दो हो गई एक फिलिया के साथ। मोर ओवर जनरल रेजोनेट्स with his general disconnectedness about the state of the world, the same disconnectedness that he expresses when he thinks no one is watching. There is a passionate intensity to his unstable behavior that keeps us from viewing it as fake. तो ऐसी जो हरकतें हैं वो हमें कहीं ना फिर ये सोचने में मजबूर करती हैं कि सचमुच में पागल तो नहीं हो गया। हम वहाँ पर यहाँ पर एक श्योर वे में बात नहीं कर सकते कि वो पागल नहीं था, और ये भी नहीं कह पा रहे कि वो पागल था। एक इन बिटवीन से हम फंसे हुए हैं अब इस चीज़ के, उसकी हरकतों की वजह से। सर एक दफा बंदा इतना गुस्से में होता है, बंदा कहता है यार मुझे पता है मैं गुस्से में हूं, लेकिन वो गुस्से में ही ऐसे बड़बड़ाता रहता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा जी था। सर। लेकिन अब ये उसका इंटेंशनल डिलिब्रेट है या कि प्रिटेंडेड है, ये दोनों रवैयों में फ़र्क आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उसको नहीं पता ना, पोलोनियस और क्लॉडियस वहाँ पे हैं, तो फिलिया के साथ तो आराम से बात कर सकता था ना, उसके साथ भी क्यों? सर वो वही बात के वो यानी याद उसको पता है कि मुझे देखने तो जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, क्यों? एक तो बात यह है कि किसी को भी इसमें शरीक नहीं कर सकता अपने दिमाग में जो बात चल रही है, ये तो वजह हो सकती है, या वाक़यातन उसने सोच लिया अब फारिग करो, क्या करें? Perhaps it is worthwhile to ask this question: if a person in a rational state of mind decides to act as if he is crazy, to abuse the people around him, regardless of whether he loves those people or hates them, and to give free expression to all of his most antisocial thoughts, when he starts to carry those actions out, will it even be possible to say at what point he stops pretending to be crazy and starts actually being crazy? समझ आ गई बात की? एक बंदा है जो कि अक्लमंद आदमी है, उसने सोचा है मैं यहाँ पे जाके पागलपन की एक्टिंग करनी है, वो उस एक्टिंग उस रवैये के साथ दाखिल होगी इस जगह पे। आप कहाँ पे कहेंगे यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे उसने एक्टिंग कर रहा था, यहाँ से जाके ये सचमुच में पागल वाली बात कर रहा है। दोनों रवैये हैं ना उसके। अब इसको कैसे कैसे फ़र्क करेंगे आप? करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर करना चाहें भी तो। फिर ये जो है हैमलेट है, क्या बात थी इसकी मेरे जहन में आ रही इसकी एक और, बल पता नहीं क्या बात थी। इसका सेकंड सीन स्टार्ट करते हैं, जो इसका आज का आखिरी हमारा सीन है, एक्ट 3 का सेकंड सीन। दैट इवनिंग इन द कैसल हॉल, नाउ डबलिंग एज अ थिएटर। अब उसको हॉल को किस में तब्दील कर दिया गया है? थिएटर के अंदर। यहाँ पे वो माउस ट्रैप जो इसका प्ले है, विदन प्ले, उसको इनेक्ट किया जाएगा। हैमलेट एंशियसली लेक्चर्स द प्लेयर्स ऑन हाउ टू एक्ट द पार्ट्स ही हैज़ रिटन फॉर देम। पोलोनियस shuffles by with Rosencrantz and Guildenstern, and Hamlet dispatches them to hurry the players in their preparations. Horatio enters and Hamlet, pleased to see him, praises him heartily, expressing his affection for and high opinion of Horatio's mind and manner, especially Horatio's qualities of self-control and reserve. जिसको बड़ा अप्रिशिएट करता है। ही इज़ द ओनली sincere friend to Hamlet as well in this play. Having told Horatio what he learned from the ghost, that Claudius murdered his father, he now asks him to watch Claudius carefully during the play, so that they might compare their impressions of his behavior afterward. Horatio agrees, saying that if Claudius shows any signs of guilt, he will detect them.
रेशियो को भी और ख़ुद भी, ताकि मैं हो सकता गलत फहमी का शिकार हो जाए, मुझसे मिस ना हो जाए, तुम भी देखना। हम देखेंगे कि जब वो सारा कुछ उसके सामने इनेक्ट हो रहा होगा तो फिर वहाँ पे किंग कैसे फील करते हैं। द ट्रम्पेट्स प्ले a Danish march as the audience of lords and ladies begin screaming into the room. Hamlet warns Horatio that he will begin to act strangely. Sure enough, when Claudius asks how he is, his response seems quite insane. वो पूछते ना कि how now Hamlet, तो आगे से कहते हैं excellent in faith of the chameleon's dish I eat the air promise crammed. ये ऐसे अंदाज में बात की है, क्लैमियन रंग बदलने वाली उस सेंस में उसने कोई अच्छी सी बीच में बात कर दी और कोई उल्टी सी बात कर दी, मिला मिलू के बात ऐसी की है जिसमें वो इनसेन सा अपीयर हो। Hamlet asks Polonius about his history as an actor and torments Ophelia with a string of erotic puns. वो erotic imagery यूज़ करके, डबल मीनिंग वर्ड यूज़ करके, पन्स के साथ एक सेक्सुअल कंटेंट में वो उससे बात करता है जानबूझ के, क्योंकि ऐसी बात करने का मकसद क्या है, क्या हैमलेट एक लस्टी बंदा है क्या है, या इनडिसेंट फेलो है। वो जस्ट के एक हैमलेट को जेब नहीं देती ये बात करना, जब वो करेगा ऐसी बातें तो वो लगेगा उनको कि पागल है। द प्लेयर्स एंटर एंड एक्ट आउट अ ब्रीफ साइलेंट वर्जन ऑफ द प्ले टू कम कॉल्ड अ डम शो। डम शो में आके प्ले करते हैं। इन द डम शो अ किंग एंड क्वीन डिस्प्ले देयर लव। द क्वीन लीव्स the king to sleep, and while he is sleeping a man murders him by pouring poison into his ear. सेम उसने वही काम कर दिया जैसे इसको गोस्ट ने बताया था। ये डम शो ड्रामा में डायलॉग कोई नहीं है, जस्ट ये काम करते हैं आके। The murderer tries to seduce the queen who gradually accepts his advances. अब मैंने चाचे दी थे अपनी माई दी पूरी स्टोरी कर दी थी होती उन्होंने, पहले सड्यूस करने की कोशिश की, बाद में उसने उसकी एक्सेप्ट कर ली जो सडक्शन थी। The players begin to enact the play in full, and we learn that the man who kills the king is the king's nephew. Throughout, Hamlet keeps up a running commentary on the characters and their actions, and he continues to tease Ophelia with oblique sexual references. When the murderer pours the poison into the sleeping king's ear, Claudius rises and cries out for light. वो चिल्लाता उठता है, कहता है वो लाइट लाओ भी। Chaos ensues as the play comes to a sudden halt. अचानक ड्रामा एक्शन रोक दिया गया उसका। The torches are lit and the king flees the room, followed by the audience. When the scene quiets, Hamlet is left alone with Horatio. ये यहाँ पे दो लोग रहते बक्सर चले गए। हाँ जी। Horatio and Hamlet agree that the king's behavior was telling. It was चुगली खा रहा है जिसे उर्दू में कहते हैं ना अपने किसी रवैये की। Now, extremely excited, Hamlet continues to act frantic and scatterbrained, speaking glibly and inventing little poems. Rosencrantz and Guildenstern arrive to tell Hamlet that he is wanted in his mother's chamber. Rosencrantz asks again about the cause of Hamlet's distemper, and Hamlet angrily accuses the pair of trying to play him as if he were a musical pipe. वो जो फ्लूट वाली मैंने आपको बताई थी लाइन। Polonius enters to escort Hamlet to the queen. जाता है उसके कमरे में। Hamlet says he will go to her in a moment and asks for a moment alone. वो जो तखलिया जिसे कहते हैं moment alone वाला। He steals leave us, जिसमें किंग कहते होते थे इंग्लिश में, तखलिया का मतलब leave us, हमारे उर्दू में तखलिया कहते हैं ना, तो इधर कहते हैं leave us. He steels himself to speak to his mother, resolving to be brutally honest with her but not to lose control of himself. कहता मैं उससे I will speak daggers to her, तुरश बात करनी है लेकिन अपना एक तमीज़ कंट्रोल लूज़ नहीं करूँगा. I'll speak daggers to her but use none. बोलना तलवार की ज़ुबान में, इस्तेमाल कोई नहीं करनी, मतलब ये उसने अपने आप से रिजॉल्व किया अपने आप को. और इसका बड़ा थोड़ा सा ये क्रिटिकल एनालिसिस भी है इसका, देखें अगर हम तो इसमें क्या है कि इन द फर्स्ट टू सीन्स ऑफ एक्ट 3 हैमलेट एंड क्लॉडियस बोथ डिवाइज ट्रैप्स टू कैच वन अनदर्स सीक्रेट्स. Claudius spies on Hamlet to discover the true nature of his madness, and Hamlet attempts to catch the conscience of the king in the theatre. The play within play
tells the story of Gonzago, the Duke of Vienna, and his wife Baptista, who marries his murdering nephew Lucianus. Hamlet believes that the play is an opportunity to establish a more reliable basis for Claudius' guilt than the claim of the ghost. यानी गोस्ट ने बता दिया है रिलायबिलिटी, कहता है अगर किंग की मुझे कोई सबूत थोड़ा सा हाथ आ जाए ना तो फिर मेरे लिए आसान होगा ये फैसला करना कि क्या मैं इसको मार दूं, फिर मेरी रिवेंज वाला मैं फिर मकसद आ जाए ना कि तरह तो ये भी शक आ सकता है यार मैंने गलत नहीं काम कर दिया, कोई शक पक्का करके। सर ये अभी भी सोच रहे हैं। इसीलिए तो ये ड्रामा किया ना इसने, पक्का करने के लिए अपने आप को, सबूत के लिए। Hamlet believes that the play is an opportunity to establish more reliable basis for Claudius' guilt than the claims of the ghost. Since he has no way of knowing whether to believe a member of the spirit world, he tries to determine whether Claudius is guilty by reading his behavior for signs of a psychological state of guilt. Although Hamlet exults at the success of his stratagem, interpreting Claudius' interruption isn't as simple as it seems. In the first place, Claudius does not react to the dumb show, which exactly mimics the actions of which the ghost accuses Claudius. Claudius reacts to the play itself, which, unlike the dumb show, makes it clear that King is murdered by his nephew. Does Claudius react to being confronted with his own crimes? या तो यह है कि उसका अपनी गिल्ट जाग पड़ी, उसके अंदर ये वजह है, और to a play about uncle killing स्पॉन्सर्ड बाय हिज क्रेजी नेफ्यू, कि इसमें अंकल किलिंग नेफ्यू वाली स्टोरी है कि उसको अपना ना आइंदा याद आ गया कि ये कुछ आगे का सोच रहा है कि मुझे ऐसे मरवाएगा, वो आगे की सोच के रिवर्स में सोच के उसको ऐसा कर रहा है। और डज ही सिंपली हैव इंडाइजेशन, यानी कि या फिर उसको वैसे ही गुस्सा आ गया कि बकवास ही शुरू की थी इन्होंने, होता ना बड़ा आदमी बड़ा ड्रामे के लिए बुलवाया, आपको शो दिखाना है, आगे बकवास हो रही है, फजूल सा उठ के चला गया। बादशाहों के गुस्से भी तो होते थे ना। हैमलेट जितना मजबूर सा में क्लॉडियस लग रहा है इतना है नहीं, वो बादशाह है, ये जेहन में रखें अपने, कोई छोटा मोटा भाई नहीं होया वो। पूरे ड्रामे में फीलिंग नहीं आई बादशाह वाली, वो स्विस गॉड की रहता है कवर में हर वक्त। स्विस गॉड उस वक्त की कह लें कि सख्त तरीन जो एक थी ना लेयर ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर है, वहाँ पे उसको कोई छेड़ नहीं सकता। वो अपने आप को चूँकि गिल्टी है ना कहीं, इसलिए खामोश तरीके से काम करता है। बादशाह को कौन सा शोर में जाने की, बादशाह है ये जेहन में रखें। तुसी एवं हौला लिया आप क्लॉडी से खैर ही बेचारे मार क्यों नहीं देता। Although Hamlet appears more in control of his own behavior in this scene than in the one before, as shown by his effortless manipulations of Rosencrantz and Guildenstern with his frank conversation with Horatio. यहाँ पर हमें वो ना easy लग रहा है, पहले से controlled behavior लग रहा है। Even expresses admiration and affection for Horatio's calm level-headedness, the lack of which is his own weakest point. वो कहता है मेरे अंदर वो नहीं है कामनेस जो उसके अंदर है। गिव मी दैट मैन दैट इज़ नॉट पैशंस स्लेव, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। सारे लोग कहते हैं पैशन स्लेव, मैं भी हूँ। एंड आई विल वियर हिम इन माई हार्ट स्कोर ए इन माई हार्ट ऑफ हार्ट एज आई डू दी। तो कहता है कि कोई भी कौन है जो अपने पैशन का गुलाम नहीं है, तो वो मुझे बताएं उसके बारे में। ये सारी उसकी बात सिंपल सी बात की उसने। इन दिस सीन ही सीम्स टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट इनसेन आफ्टर ऑल, यहाँ पर इसने ये साबित करने की कोशिश की है। गिवन द effortlessness with which he alternates between wild erratic behavior and focused sane behavior, he is excited about coherent during his conversation with Horatio before the play, but as soon as the king and queen enter he begins to act insane, a sign that he is only pretending. वो आए हैं तो साथ ही पागल हो गया, उससे पहले ये अच्छा खासा बातें कर रहा था। किंग एंड क्वीन आए, साथ ही पागलों की तरह बिहेवियर करना शुरू कर दिया। और भी लोग थे मेरे घर मेहमान, लेकिन वो जानता था कि एहतमाम किसके लिए, ये सारा एहतमाम पागलपन का बादशाह के लिए किया हुआ है। तो ये अदरवाइज अच्छा खासा है। His only questionable behavior in this scene arises in his crude comments to Ophelia, which show him capable of real cruelty, कि वो कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखता है। His misogyny has crossed rational bounds, वो जो नफ़रत हेट्रेड फॉर वीमन है वो तो एक अकल से बालातर हो चुका है ना काम। एंड हिज एवरी कमेंट इज़ लेस्ड विद सेक्शुअल इन्यूडियो,
तो ये इसनी सेक्सुअल कॉनोटेशंस के साथ जुड़ा हुआ जो इसका कमेंट, हर बात के अंदर दोहरा मीनिंग और दूसरा जो लफ्ज़ है, जो दूसरा मीनिंग है, पन है ना, पन में जो दूसरी मीनिंग है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल और इरोटिक नेचर में है. फॉर इंस्टेंस शी कमेंट्स, यू आर कीन माई लॉर्ड, यू आर कीन, complimenting him on his sharp intellect, and he replies, it would cost you a groaning to take off my edge. ये इंतहाई गलीज उसने जवाब दिया आगे से इस बात का जो उसने बोला है, मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता. His interchange with Ophelia is mere prelude to the passionate rage he will unleash on Gertrude in the next scene. नेक्स्ट सीन जो कि अपनी माँ के क्लोजेट में जाके बात करेगा, वहाँ पे जाके वो इस की एक प्रिल्यूड तमहीज़ ही मिलती है जिसमें जाके करेगा बातें. ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 सीन थे इस थर्ड एक्ट के. इसमें हमने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी. ऑफिलिया वाला मंजर ख़ास तौर पर, उसके साथ यहाँ पर वो डिनाउंस करता है उसको एज हिज बिलवेड, और ये वाला जहाँ पर वो उसने माउस ट्रैप जो है उसको इनेक्ट करवाया है एक प्ले को, वो जिसमें कहता है कि प्ले इज़ द थिंग विल आई catch the conscience of the king, and he thinks that he has succeeded in catching the conscience of the king.